So recording. Right. मैडम फेसबुक का आईडी मेरी लिख लीजिए चाहे। हाँ जी, आप बताइए। मैं 1 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं। मैं आपको ना बाद में टैग कर दूंगी अभी ना, तो कोई बात नहीं, कोई मैडम, कोई नहीं, कोई बात नहीं। रश्मि, आई स्टार्टेड द लाइव। Right. Okay. So shall we start Yes, yes, please. now? Yes. All right. Very good evening and a very warm welcome. So here is Mrs. Vijay Bansal and Mr. Can you move to the next slide, please? All right. So as we always start with the introduction to every brand. So here I am in front of you. I am a communication trainer based as we try to conserve whatever Srishti God has given us. God has created this Srishti and He's given us so many things in terms of greenery and all the natural resources. So at Srishti, we are trying to conserve whatever we can, including the cultural values of India that we have. So this was about me. So now let's talk about a bit about Parijay. As we all know, Parijay is started by Ekta ji, and Ekta ji is the brain behind Parijay, and she has given us the opportunity to connect time and again with each other. She's been connecting all the plant lovers. And the vision of basically bring people close to nature and to provide the common platform for all the innovative ideas to create best out concept by utilizing services of women serving Mother Earth and other people, training minimizing waste. And Parijay has been doing it, Ekta ji, for all this. All right, now let's today is Vijay ji. Am I audible? Yes. All right. So let's welcome Mrs. Vijay Bansal. She is 73 years old with 40 years of service in Kendriya Vidyalaya. She is a retired principal and she's retired as voluntary services from ISPER, Institute of Spatial Planning and Environment Research from Panchkola. So Vijay ji has been working so much for all of us. So we'll get to know about it in detail from her. So now let's welcome Mr. Naresh Bansal also. Mr. Naresh Bansal, he's from Mansa, Punjab, and he's into vegetable seed business since 2010. And mainly they are engrossed into team plantation, terrace garden, vermicomposting, landscaping, organic farming, harvesting, and water irrigation. So we'll know about it in detail from both of them. And with the we have
Vijay ji, can you hear us? हाँ Please tell मैडम, us something about मैं yourself. यही, हाँ मैं कुछ कहूँ मैडम, बोलूं? आवाज तो आनी नहीं। हाँ जी विजय जी प्लीज। हाँ मैं So- बोलती हूँ मैडम। मैडम यहाँ फोटो नहीं आ रही, फोटो तो आ नहीं रही मेरी। हेलो, हेलो। हाँ जी विजय जी, हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। सो प्लीज शेयर विद अस, कैसे आपकी ये जर्नी जो है कब से शुरू हुई? विजय जी, हाँ जी, मेरा बर्थ 1948 का है मैडम। मैं छोटे से गांव में रहती थी, वहीं मैं स्कूल में पढ़ी हूँ, वहां पे 11th क्लास तक। और शुरू से ही मुझे बहुत शौक था गांव में छोटे छोटे पौधे लाने, कहीं लगाने, कहीं नीम का पेड़ लगा लिया, कहीं कुछ लगा लिया। उसके बाद मैंने बीएससी होम साइंस की और टीचिंग Please, अपनी जॉब 1968 में मैंने ज्वाइन करी अपनी सर्विस मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में करी और 40 साल मैंने जॉब करी मैडम। उसमें मैंने बच्चों को बस यही, जब भी कोई पीरियड फ्री होता था तो उसमें मैं उनको गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, प्लांटेशन, ये सारे काम बच्चों को वहां कराती थी। और जब भी कभी कोई सेमिनार आना, कुछ आना जिसमें ये बताया जाता था कि प्लांट्स का कैसे है, तो मैं सबसे पहले बोलती थी प्रिंसिपल को कि मेरे को भेज दीजिए, मैं बच्चों को लेके जाऊंगी वहां पे। और मैंने पूरे 40 साल में अपना बच्चों के साथ जो काम तो किया ठीक है, लेकिन मैंने वो भी बहुत बातें उनको सिखाई। जैसे आपको मैंने ये स्नैप्स भेजी है सारी, कहीं बच्चे विम बना रहे हैं, कहीं किचन गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, कहीं वो अपना ये बूट पॉलिश वाला, कोई ऐसा काम नहीं था। क्योंकि मैं जब सेमिनार पे जाती थी हमें बहुत कुछ सिखाया जाता था, वही आके फिर मैं बच्चों को सिखाती थी वहां पे। और उसके बाद जब मैं रिटायर हुई, फिर मुझे लगा कि अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि मुझे रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छी लगी। उसमें फिर भी टेंशन थी कुछ सर्विस में। बच्चे मेरे हैं, बड़ी बेटी कनाडा सेट है, छोटी अमेरिका में है, वो भी बिल्कुल वेल सेटल्ड है, दोनों अपने मकान सब कुछ है उनका। मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। और मैं इतने प्लांट्स है मेरे पास है, कभी भी आपका चक्कर लगे, आप आए अमरावती, सारा अमरावती मेरे से लेके जाते हैं। यहाँ से अजवाइन का, पत्थर चट, कभी किसी को पथरी है तो बोलते हैं मैडम पत्थर चट चाहिए हमें, ले जाओ कोई बात नहीं है। और इस पत्थर चट की खासियत है मैडम, आपको बताऊं कि सुबह इसका पत्ता खाएंगे और टेस्ट होगा, दोपहर को और टेस्ट होगा, शाम को कुछ और होगा इसका। लेकिन ये सारे अश्वगंधा, इलायची का पौधा, लौंग का, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पास ना हो, सारे प्लांट्स हैं मेरे पास। और सुबह ही उठ के मैं इन प्लांट्स के साथ ही रहती हूँ, बस इन्हीं से बातें करती हूँ। इन्हीं को जब टच करती हूँ मुझे लगता है कि ये मुझे बुला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं मेरे साथ। और शायद मेरे को लगता है इन प्लांट्स के चक्कर में ही सारा दिन, पूरा टाइम बहुत अच्छा लगता है मुझे। और तभी मेरे को लगता है कि मुझे, मेरी सेहत शायद ठीक है, क्योंकि 73 की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं ना कि एक जो पौधा है, बहुत स्वस्थ जो पौधा हो ना, प्लांट हो, वो हमें पेड़ 230 लीटर ये ऑक्सीजन देता है। तो हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने की क्या जरूरत है? अगर हम ये प्लांट्स के साथ बने रहेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हमें सब कुछ मिलेगा इनसे। और मैं तो बस यही कहूंगी कि सब लोग जो भी हैं, यहाँ जब अमरावती में बरसात शुरू होती है, मैं छोटे छोटे पौधे की नर्सरी भी बनाती हूँ मैडम। यहाँ पे मैंने वो जो ये इसके कप होते हैं कर्ड वाले, दही वाले, उनके में मिट्टी डाल के छोटे छोटे पौधे लगा के तैयार कर लेती हूँ। फिर एक लिफाफे में डालकर वॉक करती हुई पूरे अमरावती में दे के आती हूँ। बड़े क्या खुश होते हैं लोग बोलते हैं मैडम इतनी एज है आपकी और आप बारिश में ऐसे धीरे धीरे घूम रही हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे लेमन ग्रास था। इंस्पिरेशन है। आप सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। नहीं, मैं तो जब लेमन ग्रास मेरे बहुत हुआ था, तो फिर मैंने सोचा इसको निकाल के एक एक जड़ सबको देके हूँ, किसी के पास ये ना हो कि कोठी में ना लगाओ। कई बार तो लोग जानते नहीं थे, फिर भी पूछते थे। ये क्या बात। हमारे जो ऑनर कर रहे हैं, ये देखो मेरे स्टूडेंट है, ये जी, मेरे जी। स्टूडेंट है जो विवेक अत्रे जी हैं।
ये क्या केंद्रीय बात है। विद्यालय 47 चंडीगढ़ के पढ़े हुए हैं। मुझे अरे वाह। बहुत खुशी हुई जब पता चला कि आज मेरा स्टूडेंट मेरे पास आके मुझे ऑनर कर रहे हैं। देखो जी, कितना अच्छा लग रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। पूरा अब और मैं रियली कह रही हूँ आपको कि अभी भी मैं लोगों को बोलती हूँ, आपसे मेरे से लिखवा लो कि मैं 100 तक 100 साल तक कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अरे मैं बिल्कुल, ठीक हूँ, बिल्कुल आप नहीं 120 जाऊंगी। की अगर मिसाल बनिए, 100 की विजय क्यों जी, कहती हैं आप? विजय जी 73 हमारी निकल गए। हाँ दुआएं जी, हैं बोलिए मैडम। जी। जब आप नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं, इतना सब कर रही हैं और नेचर को गिव बैक दे रही हैं, तो डेफिनेटली एज इज जस्ट अ नंबर। एक हम ऑलवेज बिलीव एब्सोल्युटली, कि एज इज जस्ट अ नंबर। वो एक हम एज जो है हमारी इस काउंटिंग से नहीं जानी जाती है, हमारे काम से जानी जाती है। और बहुत अच्छा लग सही रहा है। बात, सही बात। और जो पत्थर चट के बारे में आपने शेयर किया, यूजुअली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई पत्थर चट्टी तो है, ऐसे ही लग जाएगा, लेकिन उसकी यूटिलिटी जो है वो कितनी जबरदस्त है वो हम समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और हम लोग वेरी ब्यूटीफुली। सो नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 1982, जी 39 साल का हूँ। और मेरा शुरू से ही मेरा फादर का बिजनेस था सीड और पेस्टिसाइड का। 2010 में मैंने अपनी कंपनी प्रोडक्शन के अंदर आया था। मैं फरीद सीड के नाम से अपनी कंपनी को मैंने खोला था। आज जी, पूरे इंडिया में मैं अब बिजनेस कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट भी हो रहा है मेरा सीड। उसके बाद जो सीड के बिजनेस के साथ साथ मेरे को कुछ था कि कुछ सोशल सर्विस भी होनी चाहिए। शुरू से मेरे अंदर कीड़ा था ये सोशल सर्विस का। तो 2014 में मैंने रोटरी ज्वाइन की। रोटरी इंटरनेशनल एनजीओ है। 2014 जी, में जी, जी। मैंने रोटरी को ज्वाइन किया। तो रोटरी के अंदर मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए जो पूरे सुपर डुपर हिट्स हुए। जैसे ये आप भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, फ्री व्हीट ग्रास जूस सर्विस का ये प्रोजेक्ट था। व्हीट ग्रास जूस क्या है? कणक के कोमल पत्तों को काट के उसको रगड़ के उसका जूस निकाला जाता है। और सुबह अच्छा, खाली पेट इसको हम लेंगे तो कैंसर जैसी बीमारियां भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। अरे वाह। हमारे पास आज भी 38 पेशेंट हैं शुगर के सॉरी कैंसर के, और डेली ले रहे हैं। हमने हमने ये 2018 में शुरू किया था। और पहला कैंप हमारा 115 दिन का था। पूरे 115 दिन अच्छा, सुबह पूरी सर्दी में 3:30 बजे उठ के हम कणक काटते थे, गेहूं काट के उसके बाद उसको रगड़ते थे। फिर लोगों को जूस पिलाया जाता था। हमारे पास 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग जाती थी, लेडीज की, दैट्स जेंट्स रियली की। कमेंडेबल। यस। और 350 बीमारियों को हमने इसके ऊपर पूरी स्टडी की। 350 बीमारियों को इसने कवर किया है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, कोई भी डिसीज हो। कैंसर जैसी बीमारियों को ये ठीक कर रहा है। उसके बाद हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे हिट हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पूरे इंडिया लेवल पे ही हमारे प्रोजेक्ट्स थे। जैसे वस्त्रम प्रोजेक्ट था, हम लोगों के घरों में जो पहनने जो कपड़े थे, जो हमारे अलमीरा में पड़े होते हैं लेकिन हम उनको पहनते नहीं है, उनको हम ले आए लोगों से, उनको इकट्ठा किया, वाश करके ड्राई क्लीन करवाया जो भी करवाना था। तो उनको फिर पैकिंग करवा के हम स्लम एरिया में ले दे के आए। और ये हम आप देख रहे हो रोटरी होली फॉरेस्ट, ये मैंने अपनी 27 अगस्त 2020 को अपने बर्थडे के ऊपर इंस्टॉल करवाया था। मेरी पूरी अरे रोटरी वाह, की टीम थी। हमने 1300 स्क्वायर मीटर के अंदर 800 प्लस प्लांट्स लगाए थे, वन डे, एक दिन में। वाह, क्या बात है, और इसके क्या बात अंदर है। 55 वैरायटीज ऐसी हैं जो मतलब जो अलोप हो रही हैं अभी। जैसे हमारे यहाँ, हमारे एरिया में, मानसा के एरिया में जंड था, करीर था, काफी ऐसे प्लांट्स थे जो खत्म हो रहे हैं, अलोप हो रहे हैं। वो सारे प्लांट्स को हमने यहाँ पे डेवलप किया। ये 2020 27 अगस्त 2020 की फोटो है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन जी, जी, जी। 1.5 साल के अंदर इनकी जो हाइट है अभी 20 फीट तक पहुंच चुकी है। अरे वाह, क्योंकि हमने जो ये टेक्निक यूज की है, मियावाकी टेक्निक के साथ हमने ये प्लांटेशन की थी। और इसके बाद हमने काफी प्रोजेक्ट्स और भी किए। जैसे स्कूल के अंदर हमने काम किया है, सैनिटेशन एंड हाइजीन में काम किया है, स्कूलों में वेस्ट मैनेजमेंट में काम किया है।
हमने जैसे बच्चों को हैंड वॉश के लिए हमने स्टेशन दिए। एक टाइम में बच्चे 10-10 बच्चे अपने हाथ धो सकते थे। हमने बताया बच्चों को भी हैंड वॉश करना कितना जरूरी है। डायरिया जैसी बीमारियां हैं जो खत्म होती हैं। ऐसे करके रोटरी के अंदर हमने काफी काम किया है। फिर That's very nice. उसके बाद 2-1.5 साल से आपने शायद एक मिनी फॉरेस्ट भी बनाया है। मिनी फॉरेस्ट ही है वो जो मैंने अभी दिखाया ना आपको। जी 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 वो जी मिनी जी। फॉरेस्ट ही है जो हमने 800 प्लस प्लांट्स लगवाए थे। अच्छा, हमने जी। एक नहीं लगाया, हमने 2 लगाए थे। एक हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया था और एक हमने पर्सनली प्राइवेट ही किसी लैंड के अंदर करवाया था ये। और अच्छा, एवरी ईयर हम फ्लावर शो ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत अच्छा हमारे मानसा का ये पेट शो है। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छे प्लांट्स होते हैं, हम तैयार करते हैं। फ्लावर प्लांट्स हैं, डेकोरेट प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। तो जी जी। एवरी ईयर हम फ्लावर शोज का भी हम करते हैं। काफी काम हम ही रोटरी के अंडर ही कर रहे हैं वैसे तो। उसके बाद अच्छा। 1.5 साल से मैंने अपना एक फार्म बनाया। फार्म के अंदर मैंने अपना नर्सरी का काम भी शुरू किया था, जिसके अंदर हम अच्छा जी। वेजिटेबल नर्सरी थी और साथ में हमने ऑर्गेनिक वेजिटेबल का भी काम किया था। ऑर्गेनिक वेजिटेबल अच्छा के अंदर हमें इतना नहीं पता था कि लोग हमें इतना रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि सिटी से हम 3-4 किलोमीटर दूर थे और लोगों ने अच्छा जी। इतना रिस्पॉन्स दिया, हम सोच भी नहीं सकते। हमारे पास जितना प्रोडक्शन होता था वो 12 बजे से पहले पहले ही सारा खत्म हो जाता था। हमने क्या बात कोई है, क्या अपना वहाँ वहाँ पे कोई पैसा उनको उनसे लेने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया। ओनली एक जी जी। QR कोड था। लोग अपने आप अपने हाथ से सब्जी तोड़ते थे, उसका वेट करते थे, वेट करके QR कोड से हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते थे। लोगों को भी खुशी मिलती वाह, थी कि हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल यूज कर रहे हैं। उनको क्या हम बात थोड़ा है। नेचर के नजदीक लेके आ रहे थे। जी जी जी। ये तो बहुत अच्छा एफर्ट है, बहुत ही अच्छा एफर्ट है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी कमेंडेबल। आप जो काम कर रहे हैं ना, सच में वो मतलब शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते कितना बढ़िया काम है ये जो आपने किया है। तो आप ये जो ऑर्गेनिक आप वेजिटेबल्स बता रहे हैं, अभी आपने इसको आपने इसी तरह से शुरू कर रखा है या आप कमर्शियली भी इसको कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं? हाँ, हम थोड़ा कमर्शियली भी कर रहे हैं। कमर्शियल जी के अंदर जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल, वैसे बेसिकली 100% ऑर्गेनिक करना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी जी हम जी। कम से कम केमिकल यूज करते हैं। मतलब जब हम यहाँ पे 100% केमिकल यूज कर रहे हैं तो 100 नहीं, हम 99% रिड्यूस करके 1-2% ही अच्छा। यूज करते हैं हम। ओके अदरवाइज ओके। जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो वर्मी कंपोस्ट है, या फिर जी जी। हम खुद अपना बैक्टीरिया कल्चर तैयार करते हैं। बैक्टीरिया कल्चर से हम उसको कर रहे हैं सारा रेडी। तो जो थोड़ा बहुत केमिकल आप बता रहे हैं वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है फिर? वो ऐसे फंगस की वजह से होता है। फंगस जैसे कोई अच्छा। प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो फंगस किसी केमिकल्स के बिना नहीं खत्म होती। फिर ओके। भी हम काफी करते हैं। जैसे नीम के पत्ते हो गए, छाछ होगी, छाछ से भी काफी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं अच्छा जी। बहुत। हाँ जी। तो उसके बाद जो मेरा सीड का बिजनेस है वो मैंने आपको बता ही दिया। 2010 से हम शुरू कर रहे हैं। जी काफी जी अच्छे वेजिटेबल का ही बेसिकली हमारा ये काम है। वेजिटेबल जी के जी। अंदर हमारे ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका हमारा मेन मकसद यही है कि हम लोगों को, जो फार्मर्स हैं, उनको हम पैडी छुड़वा के, क्योंकि पैडी जी जी। के लिए पानी की मतलब जो बहुत ज्यादा पानी यूज होता है, तो हम फार्मर्स को एब्सोल्युटली। अवेयर करते हैं कि आप पैडी मत लगाओ। आपको उससे, पैडी से जितना बेनिफिट होगा उससे कहीं गुना ज्यादा आपको वेजिटेबल में बेनिफिट हम करके देंगे। तो हमारे पास आज भी 200 प्लस फार्मर्स हैं जो पैडी छोड़ अच्छा के अच्छा। वेजिटेबल के अंदर आ रहे हैं अभी। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये। विजय जी, आई एम श्योर आपको भी काफी कुछ इनसे जानने को मिलेगा। और आप हाँ, लोग बहुत दोनों ही कुछ। अपने फील्ड में आप, आप दोनों ही अपने फील्ड में इतने माहिर हैं कि आप एक दूसरे के साथ, मतलब अगर छोड़ेंगे तो मुझे लगता नहीं कि हमें बोलने का मौका मिलेगा। आप एक दूसरे इतना ज्यादा डिस्कशन कर पाएंगे इस बारे में, क्योंकि आप दोनों ही अपने फील्ड के बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं आप दोनों ही। तो विजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपने अपने पास आपने भी एक वेजिटेबल गार्डन शायद बना रखा है ना? हाँ जी, हाँ जी, मैंने अभी लगाई हुई है बाकी आप काफी। जी जैसे मूली लगाई हुई है, मेथी है, मेथे हैं, पालक है। मैं बाजार से बहुत कम लेके आती हूँ। हम दो ही अरे वाह, जने, क्या मैं बात। और मेरे हस्बैंड, यहीं से तोड़ अच्छा लिया, जी, साग बना लिया और खा लिया। क्या और
क्या फ्रूट्स वाले तो बहुत पेड़ है मेरे पास, आम अच्छा। है, हाँ 8-10 पौधे हैं आम के। क्या और बात। मैंने कोई पैसा नहीं, सच बताऊं कोई पैसा नहीं लगाया, जो आम मीठा होता था उसी को उगा देती थी। अरे वाह। 2014 में मैंने 2014 में बनाया था ये, जब ये अपने मोदी जी ने शुरू किया था, तो मैंने ये एक बहुत जगह ऐसी पड़ी थी गंदी सी, उसको साफ सूफ करके वहां कुछ ये ऐसे मैंगो लगा, आम के पेड़ लगाए, नींबू लगाया। ऑरेंज तो इतने होते हैं ये सर्दी में कि मेरा ख्याल सारा अमरावती भी खा ले तब भी खत्म नहीं, अरे वाह, बहुत बड़ा क्या पेड़ बात। है बहुत। और ये मैंगो भी बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा, जी जी मतलब कि कभी कोई ऐसी नहीं भी उसमें कोई मैंने खाद डाली है या जी। कुछ और है, बस थोड़ा बहुत होता है काम सुबह उठ के, या 1-2 माली आते हैं कभी ये अमरावती वाले, वो उस जी, पार्क को साफ भी कर देते हैं। और अच्छा, फिर 4-5 मैंने इसमें कॉर्नर बनाए हुए हैं, एक वेस्ट मटेरियल का, जो सारा सामान बना बना के मैं, जैसे ये नया साल आ गया तो वहां जी। हैप्पी न्यू ईयर लिख के सारा कुछ लगा देती हूँ। फिर छोटे छोटे वाह, बच्चे बहुत देखने आते हैं, बहुत खुश होते क्या हैं देख के, वहां बच्चे खड़े आपसे होते सीखते हैं। भी होंगे फिर तो। हाँ मैं वहां जाती हूँ ना, इस पर आपको बताया जो ये इंस्टीट्यूट है अमरावती वाला, ये जी मैंने जी। हाँ 2014 में ही ज्वाइन किया था इनको। मैं गई थी अच्छा इनके जी। पास, इनके डायरेक्टर को कहा कि सर मैं खाली नहीं बैठ सकती, अगर आप मेरे को सेवा का मौका दें, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो कहते जी। ठीक है मैडम, बेसमेंट में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, कभी चक्कर लगे आप अच्छा। आइए यहाँ, कभी जी नेट जी। पे निकाल के देखिए। तो उसमें ना बिल्कुल जी मैं, बिल्कुल। एक तो कंप्यूटर है लड़कियों का, एक ब्यूटी पार्लर का, एक सिलाई का, 3 मतलब अच्छा। कि ना बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लेना, वाह। कोई कपड़ा नहीं लेना, मशीनें सब फ्री। और मैं वहां जाती हूँ बस उनकी सिर्फ यही सेवा करने के लिए। और उसी के दैट्स साथ सो फिर हम नाइस। गांव भी जाते हैं, काफी गांव में जाते हैं जहाँ प्लांटेशन का है, जैसे ये वन महोत्सव आता है तो फिर लड़कियों को जी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, वहां ये लड़कियां लगाती हैं प्लांट्स वगैरह। और काफी मतलब कि इन्होंने फार्मर्स वाला काम भी शुरू किया हुआ है, जिसमें महीने में 1 बार जाती हूँ मैं वहां गाँव। तो बस वैसे तो हमारे ये तो यहाँ बहुत अच्छी अमरावती बात। में सारे लोगों को पता है मेरे बारे में। जैसे ये थापली वाली प्रिंसिपल थी मैडम, आपको उन्होंने मेरे को फोन किया कि मैडम कहीं से पता चला है भी आप फ्री में काम करते हो, तो आप मेरे साथ जाओगे थापली। मैंने कहा देखो जी मुझे ड्राइव नहीं करना आता, आप ले जाओ छोड़ जाओ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने 5 दिन दैट्स का वेरी वहां नाइस। कैंप लगाया। जैसे हल्दी है, वहां बहुत हल्दी होती है, उनको पता नहीं था हल्दी का क्या किया जाए। मैंने उनको हल्दी जी का जी। अचार डालना बताया, हल्दी को पीसकर प्रिजर्व करना बताया कि कैसे हम फ्रिज में रख क्या ले 1 बात साल है। चल जाएगी है। क्या बात। और वहां पे फिर अदरक होता है, अदरक को पीस के ये बनाते हैं जो सूप बोलते हैं उसको। वहां मैंने 5 दिन इन्होंने कैंप लगाया, मैं वहां लड़कियों को जितना भी कुछ सिखा सकी भाई। बस मैं तो अब यही काम करती हूँ। प्लांट्स तो मेरे पास बहुत है, अब भी मैं आज देख रही थी सुबह उठ के, कभी भी मैं सच कह रही हूँ, आप आइए कभी किसी टाइम भी चक्कर लगे बिल्कुल आएंगे तो जी, मैं हर बिल्कुल तरह के, हाँ ये मैंगो वाले तो मैं खूब दिखाऊंगी, बिल्कुल। मैंगो, ये लेमन, और उसके, और ये एक मेरे पास वो प्लांट्स है ये जिसको स्टीविया बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी मीठी तुलसी जो कहते हैं, जी वो जी जी। मैंने एक लगाया था। फिर धीरे 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 उसके बीज गिर के बनते रहे और पूरी क्यारी बना ली उसमें। जैसे शुगर है किसी को, वो आ जाते हैं कि ले जाओ आप निकाल के, जी कोई बात नहीं है, जितने दैट्स चाहिए वेरी इसमें नाइस। से ले जाओ। तो इनकी और कटिंग कटिंग, वगैरह खुद करती हैं आप? हाँ हाँ हमारे पास कटर है मैडम, बहुत अच्छा। यूएसए अच्छा वाली बेटी ने ना ऑनलाइन भेज दिया था कि मम्मी अरे वाह। ऐसे आप गड़बड़ ना किया करो, कोई हाथ हुथ खराब हो जाए। तो उसने बिल्कुल सही ग्लव्स बात भी, है। हाँ ग्लव्स, कटर, सब कुछ उसी से हम कटिंग करते हैं बस सारा। मेरे वेरी हस्बैंड भी नाइस। साथ हेल्प करते हैं मेरी। क्या बात। पर उनको, हाँ हाँ उनको इतना शौक नहीं, बोल देते हैं मैं थोड़ा बहुत कर दूंगा लेकिन ज्यादा नहीं, तो अपने आप। अब बसंत का पर मैं उनका भेजूंगी सपोर्ट मैडम। है, सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। हाँ ये बहुत जरूरी है, अकेली होना, कभी कोई बिल्कुल। चीज की जरूरत है, ये है, बस ऐसे ही है। और मेरे को वहां जाना बहुत अच्छा लगता है, जो इंस्टीट्यूट है ना वहां पे, जी जी। उधर मुझे बड़ा मतलब कि 2 घंटे जाती हूँ, 3 से 5। और उसकी मैं कुछ भेजूंगी, जब दिवाली आती है तो हम वहां पे दिए पेंट करते हैं, कैंडल्स बनाती हैं लड़कियां। फिर जो भी प्रॉफिट होता उनका पंजाब नेशनल बैंक में हमने अकाउंट शुरू किया हुआ है, उसमें जमा दैट्स कर वेरी देते नाइस। हैं। बहुत और जब बहुत किसी, अच्छा काम कर रही हैं आप ये। बस ऐसी है, जब किसी की शादी होती है तो एक मशीन उसको फ्री में देते हैं हम, सिलाई वाली भी, ये वाह, खरीद नहीं सकती बहुत अच्छी लड़की, बात है। कोई।
बाकी प्लांट्स का तो मतलब ये मैं तो सारा मतलब ही ऐसी है। चीज है कि नरेश जी भी यही चाहेंगे कि उनकी जैसे रोटरी की संस्था ये सब काम करती है, आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोग मिलके जो शुरुआत आप दोनों ने करी है ना, अगर हम सब इससे सीख लें और हम सब भी इसको आगे बढ़ाएं, तो आई एम श्योर जो ये हमारा एक सपना है ना, ग्रीनियर हैप्पियर टुमारो, वो जरूर सच होगा। मतलब सच होगा, हम सही सब है। मिलके एक तो जो हमें सृष्टि ने दिया है उसे वापस देना, यानी कि जो ग्रीन हम काटते जा रहे हैं उससे ज्यादा हम लगाएंगे तभी फायदा है। प्लस जो हमारा ये कल्चर है, जैसे कि आपने बोला, ये कल्चर हमारा जिंदा रखना बहुत जरूरी है। हमें मतलब नरेश जी अपनी तरफ से जो एफर्ट कर रहे हैं वो भी बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट्स है, और जो आप अपनी तरफ से कर रही हैं, मेरे ख्याल से ये एक एपिसोड बहुत कम पड़ेगा अगर हम उसको कवर भी करना चाहें तो। और जितने आपके टैलेंट हैं, हम चाहेंगे कि हमारे जितने व्यूअर्स इस समय हैं और प्लस जितने लोग भी बाद में भी देखेंगे, मैं चाहूंगी कि हमें कमेंट करके ये बताया जाए कि वो आपसे क्या जानना चाहते हैं इन डिटेल। तो उसकी पर्टिकुलर हम अलग से सेशन रखेंगे। जैसे कि आपके पास भी बहुत टैलेंट है, आप हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं, और नरेश जी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि घर में ही हम किस तरह से अपने ही छोटे से गार्डन से कैसे शुरुआत करके आगे तक कैसे बढ़ा जाता है, ये आप दोनों से सीखने को बहुत मिलेगा। अच्छा मैडम, नरेश जी आपसे मैं थोड़ा जानना, जी जी हाँ जी विजय जी हाँ, बताइए। मैं ये कह रही थी, मैंने आमले के पेड़ काफी लगाए हुए हैं। एक जी पेड़ मेरे को कोई ऐसे ही देकर गया, वो कहता मेरे पास मैडम मेरे पास जगह नहीं है संभालने को, आप संभाल लोगे। मैंने कहा अब 5 साल बाद उस पे फल आया, और इतना क्या मोटा आमला है, आपने फोटो शायद देखी हो, भेजी हो। और उसका मैंने मतलब कि घर में ही उसका मुरब्बा बनाया, बहुत 5 किलो तोड़ के, क्या बात है। खूब अच्छा गुड़ डाल के, यही चीनी मैंने नहीं कहा ना कि डालती, आपके पास गुड़ इतना का। कुछ है, आप हल्दी का भी बहुत कुछ जानती हैं, आंवले का भी। वही मैं कह रही हूँ कि हम एक अलग से सेशन उसका रखेंगे कि आपसे हम क्या क्या सीख सकते हैं। ये बहुत ये तो अच्छा मैं लग रहा है आपसे बातचीत करके मुझे। नरेश जी तो देखिए, आप आपने आप ये एक जनरेशन आप है और एक आपसे ये जनरेशन आगे है। जी देखिए ये बिल्कुल भी कितना कुछ कर रही हैं अपने फील्ड में। सही है, बिल्कुल सही है जी। हैट्स ऑफ है मैम। नरेश जी आपसे ये मैं जानना चाहूंगी, आपने जैसे बताया कि आप वर्मी कंपोस्ट का भी काम करते हैं, वो आप किस तरह से करते हैं, जरा थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि अगर घर से किसी ने घर में ही अगर कोई बनाना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल। वर्मी कंपोस्ट के लिए क्या है, ये बहुत अच्छी खाद है जिसके अंदर जी हमें हमें डीएपी और यूरिया दोनों के तत्व मिल जाते हैं, और विदाउट केमिकल, कोई केमिकल की जरूरत नहीं। हम इसके अंदर ऐसी लेबर छोड़ते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई अच्छा हमने जी। उस लेबर को पैसा नहीं देना, वो अपने आप काम करेगी। वो लेबर है गंडोए, जी अर्थवॉर्म। अच्छा जी। हम अगर अपने घर के लिए शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए जी ग्रो बैग्स आते हैं, उसका जो साइज अच्छा है 3 फीट मल्टीप्लाई 6 फीट का रहता है। अगर अच्छा हम जी। अगर हम उसको ग्रो बैग, हमारे पास एरिया ज्यादा है तो हम ग्रो बैग्स छोड़ के हम उसकी पिट भी बना सकते हैं। अच्छा जैसे हम ओके। ग्रो बैग का काम कर रहे हैं तो 3x6 फुट का जो ग्रो बैग है उसके अंदर हम अपना यहाँ गौशाला से हमें गोबर मिल जाता है, उस अच्छा गोबर को लाके उसको पानी डालना है। उसके अंदर जो आई एम मिथेन गैस। सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। अगर आप पंजाबी में कंफर्टेबल हैं, आप पंजाबी में बात कर सकते हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ओके प्लीज थैंक यू। कंफर्टेबल हो जाओ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ हाँ ਧੰਨਵਾਦ। जी ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, जी हाँ ਤੇ जी ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ अच्छा ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। 25 ਤੋਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। 25 ਤੋਂ अच्छा 35 ਚ ਉਸ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਵਾਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਹੈ। ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥਵਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਥਵਰਮ ਆਪਣੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ अच्छा जी ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ जी जी ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰੋ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਟਨ ਗੋਬਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। अच्छा 2 ਟਨ ਗੋਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਿਲੋ ਰੈੱਡ ਅਰਥਵਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ जी जी ਦੇਣੇ ਆ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਡੇਲੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਮੋਇਸਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਸਪਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚ ਲਿਕੁਇਡ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤੇ जी 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 जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ 45 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਰਮਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ अच्छा 45 जी ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ जी ਹੌਲੀ जी। ਹੌਲੀ ਉੱਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਅਰਥਵਰਮ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ, 90 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ अच्छा ਜੀ। ਉਹ 90 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ओके। ਉਹ ਅਰਥਵਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਰਥਵਰਮ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3000 ਦੇ ਅਰਥਵਰਮ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਥਵਰਮ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਟਨ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1800 ਕਿਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ जी ਆਪਾਂ जी ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੇਲ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 6 ਦਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा जी ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟਸ जी ਨੇ जी। ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡੈਕੋਰੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਰਡਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਮਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸਪੇਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਬਾਲਟੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਖੰਡ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਅੱਛਾ ਪਲਾਂਟ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਨੀ ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੁੰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਪੱਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਛਿੱਲੜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਕੰਬਰ ਛਿੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਛਿੱਲੜ ਹਾਂਜੀ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਡਸਟਬਿਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਵਿਛਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਕੋਪੀਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਛਿੱਲੜ ਹੋ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਐਗਸ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਜੀ ਤੋਂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਰੱਖੋ, ਡੇਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ 45 ਟੂ 80 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਵਾਹ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਭਰਨ ਦੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਰੈਕਟ। 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦਾ। 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਓਕੇ, ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ।
मीनवाइल आई एम सॉरी, मैं थे थोड़ा इंटरप्ट कर रही हैं, लेकिन जितने भी सारे ऑडियंस ने हमें, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, अगर उनके पास कोई भी क्वेरी है, इनसे आप पूछना चाहते हैं विजय जी से या नरेश जी से, आप प्लीज हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनसे आपकी क्वेरी जरूर इस समय सामने रख के आपको सवाल का जवाब दिलवा देंगे। विजय जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि नरेश जी बता रहे हैं कि ये अपनी वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, आप जो आपके घर के पौधे हैं उनके लिए आप क्या खाद बाहर से लाती हैं या आप भी खुद तैयार करती हैं? नहीं मैडम, मैं बाहर से नहीं लाती कभी भी। जी मेरे तो ऐसे ही है, जैसे ये है लेमन है, बहुत ज्यादा लगता है जब उसका जूस निकालती हूँ, वही इसके जो छिलके हैं ऑरेंज के हैं, मैं तो उसमें ये करती हूँ, जैसे इन्होंने बताया, ये तो बहुत अच्छा बताया इन्होंने, मैं तो बकेट है उसमें डाल देती हूँ, है डाल के ऊपर से उसमें वो थोड़े से नींबू के ज्यादा छिलके डाल के फिर पानी डाल अच्छा। देती हूँ, फिर उसको बंद कर देती हूँ। बंद करने के अच्छा बाद पर उस पर टाइम बहुत लगता है, उसमें मेरा ख्याल है अच्छा 2 महीने लग जाते होंगे। जब वो बिल्कुल हो जाता है, जो उसका लिक्विड होता है वो अलग रख लेती हूँ ये गमले वगैरह में डालने के लिए, और जी जो छिलके होते हैं वो मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ, या कई बार मैं अच्छा गौशाला से मंगवाती हूँ। गौशाला है हमारी अच्छा यहाँ, वहां से मैं जी जी खाद मंगवाती हूँ, वो दे जाते हैं बोरी भर के 200-300 रुपए की। तो वो जो बड़े पेड़ जी हैं जैसे मैंगो, ये इनमें मैं वो डालती हूँ। अपने जो गमले हैं ये सब्जी उसमें नहीं मैं डालती हूँ, मैं तो अपनी वो डाल देती अच्छा हूँ यही बना के बस, तो बन अच्छा। जाते हैं, ठीक रहते हैं। थोड़ा बहुत कभी ये तो घास बहुत निकाल अच्छी दिया। बात है। और कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी प्लांट में कभी कोई कीड़ा लगा हो या झड़ गया हो, कुछ परेशानी हुई हो, तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं? क्योंकि कीड़े लगने की परेशानी तो मैंने सुना है बहुत से लोग को आती है ये हाँ हो परेशानी। जाती है, पर मैं यहाँ कोई नहीं लगाया, एक बार बैंगन लगाए थे मैंने, है जी उसमें वही थोड़ा मैं लग बोलने गया वाली थी, था। बैगन और गोभी जो है ये हाँ 2 चीजों में जरूर से हाँ होता है। उसमें थोड़ा लगा, तो फिर मैंने उसमें जो ये राख होती है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे लकड़ी जलाते हैं कोयला, हाँ जी हाँ उसकी जी जो हाँ जी हाँ राख हाँ वो लेके मैंने उसके ऊपर वो डाली, या नीम के पत्ते, नीम मेरे पेड़ 2-3 मैंने लगाए हुए हैं, उसके जो पत्ते थे उनको लेके थोड़ा सुखा के बस हाथ से मसल के वो उनके ऊपर डाल दिया, तो अब लग रहे हैं बैंगन, अभी भी लगे हुए हैं ग्रीन, पर वो बैंगन ब्लैक नहीं है मेरे जो लगते हैं, वो लाइट ग्रीन कलर के, और काफी लंबे लगते हैं और बहुत टेस्टी बनता है उसका वो भरता अलग भी, अलग अलग सब्जी अलग वगैरह वैरायटीज में। है मैम, वो अलग अलग वैरायटीज हैं। हाँ बस वो ही लगाए हुए हैं मैंने, बैंगन ब्लैक वाले नहीं है मेरे पास, वो लगाए हैं, या सरसों का साग लगाती हूँ, मेथी, मेथे, मूली और पालक लगा हुआ है, बस थोड़ा छोटा सा एक बनाया हुआ है किचन गार्डन, जिसमें जैसे अब ये मौसम बदल जाएगा, गर्मी का मौसम आएगा, फिर उसकी जगह कोई और सब्जी लगा देंगे, ज्यादातर हम वो भिंडी लगाते हैं उसमें, मेरा ख्याल चलती रहती है। इन्होंने वैसे बहुत अच्छी चीजें बताई, चाय पत्ती वाला मैं डालती हूँ चाय पत्ती, लेकिन मुझे ये नहीं पता था सच में, वो चाय पत्ती में जो होती है रोज किसी गमले में डाल देती हूँ, भी ऐसे घेरने की बजाय क्या फायदा, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि मनी प्लांट में, इसमें, ये तो बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे मेरे को, मैम एक बहुत क्योंकि मैं इजी स्टेप है हमारे पास, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਐਮ ਆਈ ਆਡੀਬਲ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Yes, you are audible. ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ: ਬੇਸਨ, ਗਊਮੂਤਰ, ਗੋਬਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਗੁੜ। ਸਿਰਫ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲਣਾ ਹੈ, ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾਲ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਆਜੂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हेलो जी, आई थिंक रश्मि जी का फिर से नेटवर्क इशू है। सो मैं ऑडियंस अपना ऑडियंस सारे पंजाबी समझ सकते हैं
अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है सो प्लीज रेज योर हैंड्स। वीना जी एंड रफीक जी दे क्वेश्चंस आ रहे सीगे। ओके वीना जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी नरेश जी, जो आपने जीवामृत बताया कल, तो 1 मिनट वो दोबारा बताना क्या क्या डालना है उसमें। आवाज नहीं आ रही। मैं करवाती हूँ। सॉरी, एक बेसन है, बेसन। बेसन, हाँ जी। गौमूत्र, हाँ जी। गोबर, हाँ जी। किसी पेड़ की जो पुराना पेड़ है जैसे पीपल है या बोड़ है उसकी पुरानी मिट्टी हो, मिट्टी। या हाँ किसी तालाब की मिट्टी हो, ठीक है। और गुड़। हाँ बराबर मात्रा में। हाँ बिल्कुल, ये 5 ही चीजें हैं जो हमारा जीवामृत बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये खाद के लिए बता रहे हो या स्प्रे के लिए बता रहे हो? नहीं मैम, इसको सिर्फ हमने कीड़े के लिए। ओनली खाद है, ये अच्छा। कीड़े के लिए नहीं है, ये नहीं लिक्विड फॉर्म में। जिन्हें फुल्लां दे पौधे पे आजकल कीड़ा लग ਜਾਂਦਾ। हाँ जी हाँ जी। ਉਹਦੇ ਤੇ स्प्रे करनी चाहिए या पता नहीं करनी चाहिए? ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ केमिकल ਦੱਸਾਂ नहीं ਜਾਂ? चाहिए, केमिकल नहीं। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। हाँ जी। ਟਾਹਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ हाँ जी। ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। हाँ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ठीक है। 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ। ਛਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ 1 ਲੀਟਰ 16 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹ। अच्छा है कि एक कंसंट्रेट बन जाए। ਯੈਸ, 16 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ओके। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਰੰਤ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਥੋੜਾ ਨਮਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਫ। अच्छा सर्फ भी करना है। ਹਾਂਜੀ सर्फ की क्वांटिटी बहुत लिमिटेड होनी चाहिए ना? सब्जियां ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੀ, ਫਲਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਚ, ਓਨਲੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। 1 ਟੈਬਲੇਟ ਸਪੂਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 1 ਤੋਂ 16 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, थैंक यू, ਤੁਸੀਂ शेयर किया, एंड थैंक यू वीना जी फॉर द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। विजय आपका नंबर चाहिए मुझे, विजय मैम। हम शेयर करेंगे इनका नंबर आपसे। ठीक है जी, हम जरूर शेयर करेंगे। आपका और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू। थैंक यू सो मच वीना जी, थैंक यू सो मच। कोई और अगर क्वेश्चन करना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड, या तो आप चैट बॉक्स में लिख के दीजिए, हम वहां से पूछ लेंगे। नहीं तो अगर आप बात करना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। ऑलराइट, जब तक क्वेश्चंस आते हैं हम फिर से विजय जी से थोड़ा सा और जानना चाहते हैं। हेलो मैम। विजय जी आपसे सबसे, हाँ जी जी प्लीज। मैं विजय जी से पूछना चाह रहा हूँ कि जी बताइए। मैं गार्डनिंग, वेजिटेबल गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हूँ। अभी जस्ट मैं बिगिनर हूँ, अभी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। आप सबसे पहले अपना नाम और अपनी सिटी बता दीजिए प्लीज। उसके लिए मुझे कोई ट्रेनिंग या कुछ गाइडलाइंस मुझे। जी मैं सर, रफीक अहमद हूँ फ्रॉम बीदर, कर्नाटक स्टेट। रफीक अहमद कलीम, मैं फ्रॉम बीदर, कर्नाटक स्टेट। अच्छा जी, आप कर्नाटका से हैं। जी विजय जी, ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये शुरू करना चाहते हैं। जी जी जी, तो आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए उनको, कैसे करना है उनको शुरुआत। जी किचन गार्डन के बारे में। जी जी जी, किचन गार्डन, हाँ हाँ, उसमें यही है कि जो भी आपके पास जगह है, कुछ भी है, उसमें आपको पहले थोड़ी खाद डालनी पड़ेगी, चाहे गोबर की खाद डाल लो और उसको तैयार कर लो। बस जो आप, मैं तो ऐसी करती हूँ। फिर उसके बाद उसमें छोटी छोटी क्यारियां बनाकर, ज्यादा बड़े की जरूरत नहीं है, घर में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उसी में जो बीजना है, कुछ भी जो क्यारी बनाते हैं उसमें एक वो क्या बोलते हैं, बट बोलते हैं उसको, बनाते हैं, उसके अंदर हम मूलियां लगाते हैं और बीच में जो जगह बची होती है उसमें वहां पे मेथी लगा दी, आगे फिर मूलियां लगाई क्योंकि जगह बच जाएगी। फिर उसके बाद मेथे लगा दिए। 2 तरह का होता है, मेथी में पीला फूल आता है और मेथे के अंदर व्हाइट कलर का आता है। मेथे ज्यादा टेस्टी होते हैं वैसे। और उसके बाद फिर एक छोटी क्यारी बना के उसमें पालक लगा दो, बस। और तो कुछ है ही नहीं है उसमें, जो भी आप लगाना चाहो। जैसे आगे कोई है, पनीरी ले आओ उसकी,
मैं तो वैसे पनीरी भी नहीं लेके आती। जैसे बैंगन है, बैंगन का एक तोड़ के रख लिया, जब वो पक जाता है बिल्कुल तो उसको छील के छोटे छोटे बीज निकलते हैं, बहुत छोटे जी, होते जी। हैं, वो बीज संभाल के रख लेती हूँ। बस वो बीज लगा दिए, उसकी पनीरी बन जाती है, वही पनीरी से निकाल के वो पौधे लगा लेते हैं। बस ऐसी चीज। रफीक मैडम जी, इसको जैसे आप कर्नाटक से हैं, और कुछ वो पूछना? वाटरिंग जो देते हैं, पानी जो देते हैं, नॉर्मल पानी देना पड़ेगा क्या? उसमें कोई यूरिया वगैरह डालना पड़ेगा सोल्यूशन? ना, मैं यूरिया कभी नहीं डालती, नॉर्मल पानी देते हैं उसमें बस। ओके मैडम। कुछ नहीं, अपने आप हो जाता, कुछ नहीं, कोई यूरिया डालने की जरूरत नहीं। मैं सिंपल पानी पाइप के साथ रख देती हूँ, ऊपर से भी नहीं देती, ताकि वो जो उसके बीज है ना, वो कई बार उखड़ जाते हैं और जी, ठीक जी। नहीं रहता। बस रख दिया धीरे धीरे पत्थर के ऊपर, ताकि वहां पे कोई होल भी ना हो और वो पानी चलता रहता है। बस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये तो छोटी सी काम है, हर एक हम घर में बना सकते हैं। ऐसे ही वेजिटेबल्स भी लग जाएंगी और हमारे काम भी आएंगी। जैसे मौसम हो तो नेट से निकाल के मैं तो देख लेती हूँ कि अब इंडिया में कौन सी सब्जी लगेगी, क्या होगा। जैसे नेक्स्ट अब गर्मी आएगी तो उसमें फिर वो भिंडी लगानी शुरू कर देते हैं, मूली की जगह वही बनी होती है, उसको थोड़ा ठीक करके उसमें वो भिंडी के बीज लगा दिए। 2-4 भिंडियां जब पकती हैं तो वही मैं रख लेती हूँ, बस बीज मैं बाजार से नहीं लेके आती कभी भी। जी, जी। पके हुए होती हैं, उसी की निकाल के वही लगा देती हूँ। हर एक तरह का बीज है, जो Thank you, छोटे madam. छोटे पैकेट रखे हुए हैं। थैंक यू सो मच रफीक जी। Thank you. आप जिस तरह से आप कर्नाटक में हैं, तो वहां पे आपका जो भी सीजन के हिसाब से जो आपकी वेजिटेबल आती है, जैसे कि आपको विजय जी ने बताया, उसे ही आप थोड़ा सा पका के, जब वो पक जाएगा, सूख जाएगा, तो उसी के बीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, वीना जी कुछ फिर से पूछना चाह रही हैं वीना जी? जी वीना जी, आपको 1 मिनट, हम अनम्यूट कर देते हैं आपको। हाँ जी वीना जी। मैं पंचकुला रहती हूँ, तो मुझे टेरेस किचन गार्डन के लिए कैसे गाइड कर सकते हैं आप? ओके, ये सवाल आप विजय जी से पूछना चाह रही हैं? दोनों में से कोई भी जना गाइड कर दो। नरेश अच्छा जी जी। भी कर सकते हैं, विजय जी, जो मतलब गाइड कर सके तो, क्योंकि मेरे को बहुत शौक चलिए, है अभी ये कि सवाल हम मैंने किचन नरेश जी से गार्डन बनाना पूछते हैं। है तो, लेकिन हाँ मुझे जी। भी ये नहीं पता कि वहां पे वो ना होए, कि छत खराब भी ना होए, है ना, लीकेज भी ना होए, तो जी, किस जी, तरह जी। से हो इस सकता है? सवाल का जवाब हम नरेश जी से पूछते हैं। नरेश जी को हम जरा अनम्यूट कर दें, शायद वो म्यूट हो चुके हैं। नरेश जी को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी नरेश जी, बताइए प्लीज। टेरेस गार्डन एक ऐसा कंसेप्ट है हाँ जी। जिसके टेरेस गार्डन से हम अपने घर की सब्जी अपने खुद पैदा करके हाँ। खुद उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत इजी वे है, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। वैसे तो इनका पूरा सेट हमें इंस्टॉल हो सकता है, अगर करना है तो वो कोई प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं 20,000 रुपीज 25,000 रुपीज के अंदर उनका सारा कंसेप्ट ये इंस्टॉल हो जाता है। उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सोइंग करनी है, ऑटोमेटिकली सिस्टम है सारा, अपने आप पानी लग जाता है, अपने आप उसको खाद लग जाती है। लेकिन हम जो हमारे हिसाब से, मतलब मैं फिर पंजाबी जी गल कर रहे हैं, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਬੈਗਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਗਰੋ ਬੈਗਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਗਰੋ ਬੈਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੋ ਬੈਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਗਰੋ ਬੈਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਥੋੜੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਵੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰੋ ਬੈਗਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੈਰਿਸ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਟੈਰਿਸ ਗਾਰਡਨ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 15/20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਰਿਸ ਗਾਰਡਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਫਲਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗਰੋ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕਰ ਬਿਟਸ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗਰੋ ਬੈਗਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ
ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਭਿੰਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਬੇ ਬੈਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਸ ਗਾਰਡਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੀਟ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟੈਰਿਸ ਗਾਰਡਨ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੈਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੁੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। मतलब स्प्रे टाइप, राइट, स्प्रे टाइप, ड्रिप इरिगेशन टाइप कैसा था? ड्रिप इरिगेशन भी हो जाता है, वो भी बहुत इजी स्टेप है, कोई ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡ੍ਰਿਪਰ ਲੱਗਣੇ ਮੇਨ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਬੈਗਸ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਇਸਚਰ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਾ ਗਰੋ ਬੈਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਭਿੰਡੀ ਹੈ, ਪਾਲਕ ਹੈ, ਧਨੀਆ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੋ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਧਨੀਆ, ਹਰੇਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਡ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 42 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਓਪਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। Thank you so much, Veena ji. Any other question? Thank you. ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਐਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ? Anybody wants to ask any question? विजय जी, एक सवाल मेरा आपसे है। हाँ जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आप कह रही हैं कि आप इतने सालों से ये सब कर रही हैं, बट जो ये शुरुआत थी, ये आपको लगा कब कि ये जो इंटरेस्ट आया कि आप ग्रीनरी की तरफ, ये कब हुआ? ये जो प्यार आपको हुआ प्लांट से, वो कब हुआ? वैसे तो मैंने बताया ना कि मैडम मेरे को बचपन से बहुत प्यार था इनसे। हाँ जी, वही बचपन से, मतलब इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? वो किसी को देखा था? हाँ, वो ऐसे था कि गांव में रहती थी मैं, तो बिल्कुल छोटा सा गांव था, शायद सुना हो, लहरा गागा है कि डिस्ट्रिक्ट संगरूर में, तो मैं तो वहीं रही हूँ बचपन। हाँ, तो वहां पे ऐसे था कि मेरे मम्मी की आदत थी, जैसे पापा की थी, वो नीम का पेड़ है, उन्होंने कहा कि ये वो बीज निमोलिया गिर गई है, इसके पेड़ लग गए हैं, तो वो वैसे ही उठाते थे, तो मैं उठा के लगाती थी। वो कहते थे कि इसको अच्छी तरीके से लगाओ, फिर ये नीम, क्योंकि गांव में ज्यादातर मैंने देखा यही पेड़ होते थे नीम के, अब भी है वहां पे नीम और एक पीपल, बस 2 ही होते थे। जब उनको मैं देखती थी ना, मेरे वो पेड़ अब भी बहुत बड़े बड़े हैं। जब जैसे मैं बड़ी होती रही, वो पेड़ भी बढ़ते रहे। जब उन पेड़ों को देखती थी बहुत खुशी होती थी। फिर मैं सोचती थी क्यों ना लगाऊं मैं पेड़। कहीं भी जाके, छोटी थी, स्कूल में भी, हमारा स्कूल कभी कच्चा था फर्श, कोई ईंटें ऊंटे नहीं थी, कोई चेयर नहीं, कोई कुछ नहीं होता था, ऐसे ही अपना वो ले जाना, तप्पड़ सा वो बिछाना और बैठ जाना। वहां वो हमारे जो टीचर थे वो बोलते थे कि भाई बच्चों, अब देखो रिसेस के बाद कोई पढ़ाई नहीं होगी, चलो आप ढूंढो कहाँ कहाँ है प्लांट्स, जो छोटे छोटे बीज गिरे होते, कहीं इमली का है, कहीं कुछ है, वैसे ही ले लेके उनको लगाते। बस उसी से मन बहुत बढ़ता गया। जैसे कॉलेज में आई फिर थोड़ा सा फर्क हो गया, जब सर्विस में आ गई फिर मैंने शुरू कर दिया काम ऐसे। अब आफ्टर रिटायरमेंट तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं रिटायरमेंट के बाद, मैं कहती हूँ लाइफ ही रिटायरमेंट के बाद, सारी जिम्मेवारी खत्म, अब तो बस प्लांट्स का ही काम करना है मैंने, और कुछ नहीं। ज्यादातर जो आप ये कर रही हैं, आप ज्यादा एंजॉय कर रही होंगी अब। बहुत बहुत एंजॉय करती हूँ। और बेटियां जब देखती है ना मेरी दोनों बाहर, तो वो यही कहते हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है। अभी चलो मम्मी डैडी अकेले हैं वहां पे, किसी काम पे लगी रहती है मम्मी हर टाइम, बहुत उनको भी। मैं ज्यादातर ये 2014 में ही बनाया मैडम, ये जो पार्क बनाया ना मैंने यहाँ अमरावती में,
जी बल्कि जी काफी लोग आते हैं देखने, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पे तो विजय जी, आप इतने जो काम कर plants रही है ना, लगे हुए हैं। आप जो काम कर रही है ना, सिर्फ प्लांट्स का नहीं, और सबका जो आप केयर इतना कर रही हैं, सब बच्चों का आप ध्यान रख रही है, एनवायरनमेंट का आप ध्यान रख रही है, सिर्फ आपकी बेटी नहीं, हम सब आप पे बहुत प्राउड है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज आपसे ये कनेक्ट कर पाए हैं। इनफैक्ट ये सेशन जो है हमें कम पड़ रहा है। मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हमें इस समय सुन रहे हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा जो ये सेशन है ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है आज, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हम दोबारा से विजय जी से भी और नरेश जी से भी इस बारे में जरूर से बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस सेशन को यहाँ पे खत्म करें, अगर कोई भी और सवाल इस समय आपके मन में है जो आप जानना चाहते हैं, आप प्लीज हमें बताइए, ताकि हम फिर जो है इसे कंक्लूड कर सकते हैं। या अगर आप भी कुछ मैसेज देना चाहती हैं विजय जी और नरेश जी, तो आप भी हमें प्लीज जी ऑडियंस के लिए मैसेज दे सकते जी, मैं सबसे पहले हैं। जी तो नरेश जी, पहले आप बताइए। मैं नरेश जी पहले। जी एकता बंसल जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है लोगों के लिए, क्योंकि हर एक लोग जो है अपने घर पे टेरेस गार्डन या प्लांटेशन कर लेते हैं, लेकिन उनको इतना नॉलेज नहीं रहता। लेकिन बिल्कुल सही बात। एकता जी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ये लोगों के लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ, इसके लिए परिचय को हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक यू है। परिचय, आप सबने, आप ये जो एफर्ट कर रहे हैं, सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। इनफैक्ट आप सबसे इसी पे हम शेयर करना चाहेंगे कि परिचय का भी एक मिशन है त्रिवेणी का। त्रिवेणी, जैसे कि आप जानते हैं, 3 जो पेड़ हैं उसका संगम होता है। एकता जी प्लीज, मैं नहीं बताऊंगी इस बारे में, आप जी बताएं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं सॉरी रश्मि, मैं एक छोटी सी करेक्शन कर रही हूँ। ये परिचय का मिशन नहीं है, ये हमारा सबका मिशन है। ये इस मिशन को आप ये कह सकते हैं, इट्स 100 years विजन कि हम आज जो मैंने पहले भी ये बात बोली है कि ये जो हमारी मिडिल जनरेशन है, इस मिडिल जनरेशन ने एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो अब अगर हमें ये रियलाइज हो गया है, तो हम ये मिडिल जनरेशन ऐसा करना चाहते हैं जैसे जो विजय जी हैं। आई एम इन द मिडिल जनरेशन। मैं नरेश जी को यंग जनरेशन में लूंगी। विजय जी जो है, विजय जी और नरेश जी जो, जैसे हमारे पास अक्षित जुड़ा था, ही इज सच अ यंग चाइल्ड, कि हम विजय जी और नरेश जी हैं, अक्षित है, इनको कनेक्ट कर सकें, ताकि जो विजय जी के गूगल से पहले, गूगल नहीं था तो हम अपने एंसेस्टर्स से जो इंफॉर्मेशन लेते थे, तो ये त्रिवेणी जो है, जिसको आई थिंक हमें नहीं पता, लेकिन अगर विजय जी हमारे सीनियर्स हमें ये सब बताएंगे, बच्चों को समझाएंगे और इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ परिचय का नहीं है, हम सबका है, ताकि इसको हम लोग आगे से आगे बढ़ा सकें। तो हमारी यही कोशिश है कि जो पौधे, जैसे उन्होंने बताया नरेश जी को, तो वो मिनी फॉरेस्ट बना रहे हैं, तो ही नोज कि किस तरह से जो हमारे नेटिव प्लांट्स हैं वो खराब किए जा चुके हैं, हम लोगों ने खुद अपने हाथों से उनको खत्म कर दिया है। जैसे कहते हैं ना कि हम जिस पेड़ पर बैठते हैं, जिस टहनी पर बैठे, हमने उस टहनी को ही काट दिया है। तो अब कोशिश यही है कि उस टहनी को हम दोबारा लगाएं। उसी के चलते हमने एक मिशन शुरू किया था कि हम लोग त्रिवेणियां लगाएं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, जैसे अभी मार्च में मौसम शुरू होगा, तो हम मार्च में कुछ त्रिवेणी लगाएं। एंड प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब लोग जब भी त्रिवेणी लगाते हैं तो वो शेयर करें, उन्होंने कहाँ पर लगाई है, किसी को प्लांट्स नहीं मिल रहे हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें, हम प्रोवाइड कराएंगे। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जगह की प्रॉब्लम आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे लगाना है या पौधे नहीं मिल रहे हैं, वो शेयर कीजिए, ताकि हम उसको एक काउंट, एक प्रॉपर वे में लें। त्रिवेणी लगी है तो उसका काउंट आए, और वो काउंट आ रहा है तो हमें पता चले वो कहाँ पर लगी है। और लॉन्ग रन, ये नहीं कि आज लगा दिया, हम उसको एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर मॉनिटर करेंगे कि कहीं पर अगर डैमेज हुआ, कोई पौधा नहीं चला, तो उसको दोबारा लगाया जाए, मेंटेन किया जाए। चाहे आप एक लगाइए, 1 लाख त्रिवेणी लगाने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग वो पौधे लगा दें, 1 लाख लोगों के साथ जुड़ना है, ठीक है। एब्सोल्युटली। हमारी इंडिया एकता जी, पॉपुलेशन, नरेंद्र कुमार जी नरेंद्र कुमार जी शायद सवाल पूछना चाहते हैं। रश्मि में आ रही हूँ वहीं पर वापस। तो ये था त्रिवेणी 1 लाख लोगों के साथ जुड़ने का मकसद था। 130 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन इंडिया में है, उसमें से 1 लाख लोग ज्यादा नहीं है। अगर हम 1 से 2, 2 से 4 जुड़ेंगे तो 1 लाख का मिशन बहुत जल्द पूरा किया जा सकता है। सो यही हमारा मकसद था बिल्कुल बिल्कुल के लिए। बिल्कुल 100%। जी जी। तो अभी कहाँ पे शेयर करना है जी? आपका मैम, व्हाट्सएप ग्रुप है या कैसे? हाँ जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए,
फेसबुक के ऊपर भी हमारे ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह पे अवेलेबल हैं। आप हमारे पास ऑन कॉल व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज ऐड कर लीजिए। जी जी, आपका नंबर हमारे पास आ गया है, मैं आपको उसमें जी। ऐड करती हूँ। जी तो नरेंद्र कुमार जी से पूछ लेते हैं वो क्या कहना जी चाहते जी, हैं। आप उनको अनम्यूट कीजिए। जी हेलो, इज ही अनम्यूट? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र जी। मैं सबसे पहले, नमस्कार जी। इससे पहले कि नरेंद्र अंकल बोले, मैं खुद सबसे पहले उनको एक बार छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नरेंद्र अंकल जो हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने भटिंडा के अंदर जो हमारा 500 त्रिवेणी का प्रोजेक्ट था, उन्होंने खुद आगे बढ़कर उसके लिए लीड ली और उसको अपनी देखरेख में इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नरेंद्र अंकल ने he is the UN awardee for his devotion and जो इन्होंने अवेयरनेस फैलाई है, पहले पोलियो, फिर एड्स, ऑल ओवर इंडिया। So it's क्या a बात है। हाँ, it's an honor for us that he is part of our team. So वाओ। सॉरी अंकल, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब किया, सो प्लीज कंटिन्यू। नहीं, आप कोई बात बताइए। नहीं, कोई बात नहीं। नमस्कार। आप सुन नमस्कार। रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी जी। बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं। जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। देखिए, नमस्कार। मिशन त्रिवेणी के साथ साथ ये जो रूफ गार्डनिंग का प्रोजेक्ट चलाया है ना, जी ये आने वाले समय में बहुत सबके लिए हितकारी रहेगा। तो जी। नरेश जी रोटेरियन जो हैं, इनकी बातचीत, मैम विजय की जी छोटे छोटे नुक्ते हैं, बहुत अच्छे हैं, इससे सबको फायदा उठाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल। फिर मिशन त्रिवेणी के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा बेटी एकता को, इनको एक बुकलेट में लाइए। जी जी चाहे हम बिल्कुल। किताब ना छुपाएं, ठीक है ना जी? जी तो जी जो जी भी जी जी इच्छुक है, जो चाहता है भी मैंने रूफ गार्डनिंग करनी है जी या मैं उधर जाना चाहता हूँ, मैं तो अपनी बातचीत में कहता हूँ भी अपना उगाइए, खुद खाइए। जी बिल्कुल सही बात। अपना उगाएंगे तो बहुत अच्छा उगाएंगे, बिना किसी जो है केमिकल्स के आप उगाएंगे, खाएंगे। ये हमारे एब्सोल्युटली। खेत के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, सबके साथ। जी जी तो जी जी बस यही बात रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने अपना हाथ जो वो उठाया था। एक बार फिर जो स्पीकर हैं हमारे, मैडम जी विजय जी और नरेश जी, वे बहुत जी बधाई हो। छोटी छोटी बातें आप लिखकर मैडम एकता को भेज दें, जी ताकि आने वाले समय में इसकी फॉर्मेशन जो है मिशन त्रिवेणी के थ्रू, उसी के साथ हम जोड़ दें अपनी रूफ गार्डनिंग। तो टेरेस का सिस्टम जो है, हम उसमें जी और लोगों को ज्यादा जोड़कर आगे चलें। धन्यवाद, बहुत अच्छा सभी का आइडिया है। धन्यवाद। जी जी। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you so आपने much. बहुत अच्छा आइडिया दिया है। इनफैक्ट जो आजकल का जमाना है ये डिजिटल बुक का है, तो हम डेफिनेटली एक जो आपकी बात है, हम इसको एक डिजिटल बुक बनाएंगे जिसमें हम ये सब कॉन्टैक्ट्स अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा जरूर खजाना हमारा बनाइए, तैयार हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे बहुत सबको बड़ा बहुत खजाना फायदा होगा। तैयार होगा। देखिए, हर जी स्पीकर जो आता है वो कहीं ना कहीं से अपना तजुर्बा बताता है आपको। बिल्कुल अब सही बात। नीम की बात, पीपल की बात मैडम विजय ने की, हाँ जी, बचपन हाँ से जी हाँ जुड़े जी हुए हैं, कितनी बड़ी जी बात है। ये एक इंस्पायरिंग बिल्कुल बात है। तो अभी बिल्कुल। नरेश जी बता रहे थे हमें बैग्स के बारे में, या और कैसे हमें पैदावार करनी है, कैसे जी जी टेरेस पर जाना है, कैसे उनकी जी शेडो चाहिए। तो अगर ये सारी डिजिटल फॉर्म में हमारे पास आ जाए ना, थोड़ा जी। सा मेहनत करनी पड़ेगी हमें, नहीं नहीं मिशन बिल्कुल त्रिवेणी करेंगे और सर। परिजाई जी ने, हाँ जी, थोड़ी सी जी मेहनत बिल्कुल के करेंगे। साथ हम बहुत अच्छा काम करेंगे और बिल्कुल देश बिल्कुल। के कई लोगों के हिस्से में ये बातें जाएंगी, वो फायदा जी उठाएंगे और हमारे मिशन से जुड़ेंगे भी। जी जी जरूर। निष्काम सेवा ये हमारी, ये बहुत जी। बड़ी बात है। बेटी एकता तो डंडा आप आती है, बस यही बातें चलती रहती हैं। आप सबका जी जी बहुत आपका बहुत जो धन्यवाद। आशीर्वाद है, अगर आपका पूरा जो सजेशन आशीर्वाद, है, आपका ये पूरा पूरा आशीर्वाद है, हमारे साथ है और हम सब साथ में मिलके भाई। जरूर से अपना ये सबका सपना जरूर देख- बहुत अच्छे से देखिए, साकार करेंगे। मैं तो एक लर्नर हूँ, बस सीखता रहता हूँ। अभी आप जी बातचीत में बहुत सीखा, तो वहीं जी से मुझे ये बात मिली भी, एक डिजिटल सिस्टम में हम जाएं, एक जी बुकलेट तैयार हो, अवेलेबल हो बिल्कुल हमारी साइट पे, जिसने बिल्कुल जो जी बिल्कुल। पढ़ना है, जो देखना है। जी अभी मैडम विजय बता रहे थे जी भिंडी पक गई है, उसी के बीज यूज हाँ जी कर रहे हैं।
हाँ ये जी, हाँ बड़ी जी। बड़ी काम की बातें, बाजार में जाने के लिए 10, 15, 20 रुपये भी खर्चने की बात इसमें खत्म हो जाती है। हर घर बिल्कुल में सही बात सब्जी है। बनती है, भिंडी बनती है, तो जी, हम अपना बीज स्टोर स्वयं ही तैयार करें। कितना जी, अच्छा बिल्कुल। उन्होंने हमें बताया ये बीज जी। भंडार भी हमारे घर से ही शुरू हो। हाँ जितना जी, हाँ लगाव जी। हम इसमें डालेंगे अपना, तो उतनी कामयाबी हमें मिलेगी। एकदम सही तो बात है। बस यही कहूंगा, अपना उगाइए, स्वयं ही खाइए। और धन्यवाद, सबको धन्यवाद, खिलाइए। सबको नमस्कार, धन्यवाद। ढेर सारा थैंक यू सो आशीर्वाद। मच। थैंक यू सो हम मच। थैंक यू। रश्मि जी, हमारे ये स्लोगन्स हैं कुछ, ग्रो योर ओन फूड, ग्रो योर ओन फार्मा, जैसे वेजिटेबल जी। प्लांट्स हैं, मेडिसिन हैं। एंड मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ मिस्टर नरेंद्र कुमार जी से कि ये डिजिटल, और हम ऑलरेडी ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं कि जी। जैसे विजय जी के एक्सपीरियंसेस हैं, नरेश जी के एक्सपीरियंस हैं, जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं वो हाँ जी। अपने एक्सपीरियंसेस को पेन डाउन करें। एंड जी। वो जो हम अपनी हमारी वेबसाइट है सृष्टि, उसके थ्रू हम इन ब्लॉग्स को, इस लिटरेचर को ऑनलाइन जो है Absolutely. वो करेंगे। सो एनीबडी हु वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, Absolutely. कोई भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहता है, वो वहां पर जी। ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इस ऑप्शन को अभी हम लोग बहुत जी। इस उसमें अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको अपलोड करने वाले हैं। सो जी। वो खुद अपने ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। जी जी जी। जी ये बहुत अच्छा आइडिया है, इससे बहुत से लोगों को बहुत फायदा होगा। जी इनफैक्ट अदर देन आवर स्पीकर्स, इनफैक्ट अगर कोई भी हमारे स्पीकर भी बनना चाहते हैं, या हमें कोई आप इस तरह का आइडिया है आपका, कुछ आपके टिप्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे वो शेयर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं जिसमें हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारी साइट्स हैं, हमारे ट्विटर हैंडल है, हमारा इंस्टाग्राम है, आप वहां से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आज का मुझे मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आज का हमें ये एपिसोड अपना कंक्लूड करना पड़ेगा। तो अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं हमारी, तो हम इस एपिसोड को डेफिनेटली अगली बार लेके जरूर आएंगे। और बहुत से सवाल हैं जो विजय जी से हम करना चाहेंगे, विजय जी के बारे में जानना चाहेंगे, और नरेश जी से भी बहुत कुछ सुनना अभी बाकी है। तो लेकिन अभी समय की कमी है, हमारा ये एपिसोड हमें आज यहाँ पे कंक्लूड करना पड़ेगा। हमें बहुत ही अच्छा लगा नरेश जी आपसे बात Thank you. करके, आपने अपना समय दिया और हमें इतनी अच्छी टिप्स दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विजय जी, आपने इतना सब कुछ हमें बताया और हमें सिखाया, और हमें जो आपने अपना जो आपकी जर्नी हमने अभी तक देखी है, जो अभी थोड़ी है, अभी और बाकी है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आपसे आपके बारे में जान के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों से एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि परिचय ना ही सिर्फ ये इस तरह के वेबिनार्स, बल्कि छोटे कॉन्टेस्ट भी परिचय ने शुरू किए हैं, जिसके थ्रू हम प्लांट लवर्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और हमारी क्रिएटिविटी भी बाहर आती है। जैसे कि पिछली बार हमने लोहड़ी पे कॉन्टेस्ट किया था, जिसमें लोहड़ी की थीम पर सबको अपना गार्डन सजाना था, मिनिएचर गार्डन बनाना था और मिनी गार्डन। तो हमें बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज आए थे, और अभी हमने एक और कॉन्टेस्ट शुरू किया है जो कि बसंत की थीम पे बेस्ड है। सो आप सब लोग जितने भी सुन रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से अपनी एंट्री भेज दीजिए। 2 तारीख सुबह 1 बजे तक आप हमें एंट्री भेज सकते हैं। और आप अपना जो मिनिएचर गार्डन है, इसमें दोनों चीजें हैं, आप मिनी गार्डन भी बना सकते हैं, मिनिएचर भी बना सकते हैं, जैसे भी आपकी सहूलत है उसके हिसाब से। बसंत के थीम के हिसाब से आप उसे डेकोरेट कीजिए और अपनी एंट्रीज हमें आप दीजिए। अब इसके साथ हम आज की शाम को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू सो मच नरेश जी, एंड सभी ऑडियंस का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू नरेंद्र जी, वीना जी, आपके सवालों के लिए आपको हम जरूर से ऐड करेंगे। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विजय एकता मैम जी। का गार्डन में विजिट करने आऊंगी। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी, नेक्स्ट वेबिनार हमारा ये जो सैटरडे वेबिनार रहता है वो फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे रहता है, और अभी जो नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट सैटरडे आने वाला है वो 5 फरवरी है, और उसमें हमारे जी। स्पीकर्स, यंग स्पीकर्स, मास्टर अक्षित तनेजा जो हमारे लोहड़ी कंपटीशन के विनर भी रहे हैं, और मुक्ता भार्गव जी जो लखनऊ से हैं, वो हमें जुड़ने वाली हैं। तो और मेरी रिक्वेस्ट है कि आज हमारे पास जो कितने भी स्पीकर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जुड़े रहे हमारे साथ और स्पीकर्स को सुनने के जी, लिए, बिल्कुल। उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के जी। लिए। जी थैंक यू। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारा परिवार जो है एक साथ रह के बहुत कुछ, बहुत ऊंचाइयां छुएगा। हमारा जो एक सबका सपना है कल जो है वो हमारा हरा भरा ही रहेगा। हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको हम एक ग्रीन टुमारो ही गिफ्ट करके जाएंगे। सो आप प्लीज हमसे जुड़े रहिएगा अगले वेबिनार में भी। और अब हम जल्दी ही मिलेंगे 5 तारीख को, उससे पहले हम 2 तारीख को मिलेंगे बसंत के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।